Good morning, students, and welcome back. Yesterday, we started a new lesson, Compare a Program. I explained you half of the lessons up to page 59. I hope you remember about that. How the program before keeping a program of how it should be organized, what are the steps to be taken. It was explained to you. How we start the program with the welcoming all dignitaries and all, having the speech and welcome songs, everything. Now we will proceed with that. Then page 60. Okay. Okay, now see in this paragraph we said that Mr. Sri Charudatta, the president of Kalaranjan Academic, was honored by the principal of the school by Balananda Vidyalaya. After that, after welcoming and all appreciations and all, after that the head girl who is the host of the program says that I would now request the convener of the Heart Festival. Convener means I explained you who organized the function, and the art teacher was in charge of the function. And her name is Miss Shilpa Sangani, to welcome the beacon of our institution. Beacon means an important and a respected person. Okay, who has inspired her lot. जो लोगों ने दूसरों को इंस्पायर किया, ऐसे एक व्यक्ति के नाम ले रहे हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ बालानंद एकेडमी, मिस्टर अवधूत पाठक. I would now request our school captain and the cultural incharge, Miss Mugudha Murarka, to welcome our ever-inspiring dynamic principal, Dr. Ajinkya Parki. Okay, now they are welcoming their principal, Dr. Ajinkya Parki, sir. Our enthusiastic vice principal will be welcomed by Miss Anaga Bhatia. Our Miss Anaga Bhatia will welcome the vice principal of that school. Thank you, dear Anaga. Okay. यानी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को वेलकम किया गया है डायस पे, उनके बारे में बताया जा रहा है ना. इंट्रोडक्टरी स्पीच मतलब फंक्शन व्हेन बिफोर स्टार्टिंग द इंट्रोडक्शन इज गिवन, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी स्पीच. To apprise you about the art festival, I request the principal, respected Ajinkya Parki, to deliver his introductory speech. यानी आर्ट फेस्टिवल स्टार्ट होने से पहले डॉक्टर अजिंक्य पार्की का एक इंट्रोडक्टरी स्पीच हो. अप्राइज मीन्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शंस. ओके. बुक रिलीज. नाउ सी उसमें एक और टॉपिक है, दैट इज बुक रिलीज. फ्रेंड्स, वी हैव prepared here a volume comprising photographs of all the beautiful and the unique pieces of art which are displayed today in the auditorium. And a new book is being released which contains photographs of all the beautiful and unique pieces. आर्ट से रिलेटेड बहुत सारे ब्यूटीफुल पिक्चर्स फोटोग्राफ्स यहाँ पे उस किताब में है, एंड इट इज़ डिस्प्लेड एंड ओवर इन द ऑडिटोरियम. ओके. दे आर द आर्टिस्टिक एंड स्किलफुल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर स्टूडेंट. और ये सब किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया? स्कूल के स्टूडेंट्स ने, जो कला से कलात्मक मतलब दे आर द कलाकार. ओके. दे आर द आर्टिस्ट एंड दे आर द स्किलफुल कॉन्ट्रीब्यूशन. उनका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है इस फंक्शन को ये करने में, ऑर्गेनाइज करने में. मतलब वो अपने अपने नए नए आर्ट्स और स्किल्स में दिखाए. आई रिक्वेस्ट द चीफ गेस्ट टू रिलीज दिस स्पेशल बुक ऑन दिस ओकेजन एंड फॉर्मली इनॉग्रेट द आर्ट फेस्टिवल. तो व्हाट इट इज सेड, द चीफ गेस्ट इज रिक्वेस्टेड टू रिलीज दिस बुक. मतलब जो एक नया बुक है, जो बुक में बहुत सारे पिक्चर्स, ब्यूटीफुल पिक्चर्स और आर्ट से रिलेटेड काफ़ी अलग अलग फोटोग्राफ्स डिस्प्ले किए, वो किताब, उससे रिलेटेड जो किताब बच्चों ने बनाए हैं उसको इनोग्रेट करना, पहली बार उसे दिखाना. दैट वाज गिवन टू द चीफ गेस्ट. थैंक यू सर. नाउ द चीफ गेस्ट हैज इनोग्रेटेड दैट स्पेशल बुक. आई नो दिस हैज aroused curiosity in you to see the exhibition. After this program you can take that pleasure. मतलब वो जो होस्ट बोल रही है, आप लोगों को देखने की चाहत होगी उस किताबों में क्या है, पर ये होने के बाद, आप प्रोग्राम होने के बाद उस एग्जीबिशन को आप आनंद उठा सकते हैं. नाउ कल्चरल प्रोग्राम. नेचुरली
जब कोई फंक्शंस वगैरह के कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, सिंगिंग होते हैं, सॉन्ग डांसिंग होते हैं, म्यूजिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ें वगैरह होती है वो फंक्शन में। तो अभी कल्चरल प्रोग्राम चला। आई नो यू आर ऑल eagerly वेटिंग टू लिसन टू द gems ऑफ द म्यूजिक फ्रॉम आवर स्कूल। We now invite this talented band of musicians to display their talent. We proudly present the Tal Kacheri. Okay. Now the cultural program is going to start. यहाँ पे कुछ musicians वगैरह है, the students only, and they are presenting this Tal Kacheri. ताल कचेरी is a music concert, we can say, जो म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ें होती है तो उसको हम लोग ताल कचेरी बोलते हैं। साहिल ऑफ स्टैंडर्ड 10th A will give you vocal renditions and the same piece will be demonstrated on the different instrument. Let's enjoy the ताल कचेरी। मतलब स्टैंडर्ड 10th का जो लड़का साहिल नाम का है वो मुंह से गाना गाएगा या एक क्लासिकल वो ये निकालेगा जिस वो उसी को रिपीट दूसरे इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। अगर आपने म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स वगैरह देखे हैं तो जो गायक जो बोलता है उसी को लोग मृदंगम में, हारमोनियम में या तबला में या फ्लूट में वो लोग फिर से उसी चीज़ को बजा के दिखाते हैं। तो दैट इज़ गोइंग टू बी डन। वर्षा है ऑन मृदंगम, विवेक ऑन ढोलक, जुबिन ऑन तबला एंड गोविंद ऑन Gatam. Okay, this is some of the students who will be playing the instrument. Let us have a big round of applause for the excellent demonstration. मतलब applause मतलब फंक्शन मतलब वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया म्यूज़िक कॉन्सर्ट का, तो उनके लिए तालियां बजाई जा रही है। Different state displays their unique identity through their respective culture. Standard 7C will now give a beautiful presentation of the famous Koli dance. नाउ 7 उसके बाद ताल कचेरी के बाद डांस का आइटम दिखाया जा रहा है, कोली डांस फ्रॉम 7C। एंड वो कोली डांस इसका है महाराष्ट्र का फोक्स डांस है। व्हाट ए वंडरफुल प्रेजेंटेशन आफ्टर द कोली डांस। नाउ ए लाइट कॉमेडी प्ले विल बी प्रेजेंटेड बाय 9C. I would like to request standard 9th artist to perform their play The Boy Comes Home by A.A. Milne. यानी आफ्टर ताल कचेरी देयर वाज ए कोली डांस और कोली डांस के बाद एक लाइट कॉमेडी प्ले नाटक रखा गया बाय स्टैंडर्ड 9th C एंड द बॉयज विल बी परफॉर्मिंग दैट वाज इंडीड ए फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। एंड आफ्टर दैट प्रोग्राम दैट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी सारे प्रोग्राम ख़त्म हो गए तो उसके बाद के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का वक्त आता है ना। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, यू आर ऑल eagerly वेटिंग फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस। देर आर बटरफ्लाइज इन योर स्टमक्स। बटरफ्लाइज इन योर स्टमक मतलब आप थोड़ा नर्वस हो जाते तो पेट में एक अजीब सी आवाज़ें होती घबराहट सी, तो दैट इट इज शोइंग यू विल सून बी रिलीव्ड ऑफ योर एंजाइटी। एवरीवन इज यूनिक in his on her potential. All are talented, yes, but some of perform better and their talents needs to be appreciated. क्या बोल रहे हैं, हर एक बच्चों में एक यूनिक पोटेंशियल होता है, मतलब हर एक बच्चे एक अलग होते हैं। दे आर हैविंग सम यूनिक क्वालिटी, एक अलग हट के क्वालिटी होते हैं और ऐसी क्वालिटी को अप्रिशिएट करना इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। जब उनके बारे में हम लोग तारीफ़ें करेंगे या उन्हें प्रोत्साहित करके उनसे कुछ पुरस्कार देंगे तो वो बच्चे को अच्छा लगता है और वो उससे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो दिस से उस टैलेंट को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। I would now invite the chief guest to declare the prize winners and give away the prizes for the different categories of art. Thank you, sir. Again, the chief guest is called to distribute the prize. इन चीफ गेस्ट को बुला के प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो जो बच्चों ने जिस क्षेत्र में इसके लोग ने किया है उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जिस टॉपिक या वी कैन से दैट कौन से कला में वो निपुण है, अच्छे किए उन्होंने, जिन्होंने बजाया या गाया है जो भी है उनको प्राइज़ अभी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द थैंक यू इज सेड टू द सर, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया उनको थैंक यू कहा। एड्रेसेस बाय द चीफ गेस्ट। नाउ द चीफ गेस्ट इज गोइंग टू स्पीक सम फ्यू वर्ड्स। आपको पता है चीफ गेस्ट जब आते तो उनसे भी कुछ शब्द हम बोलने के लिए कहते तो वो अपने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते।
Sorry. I would now request our illustrious chief guest to address the audience. Now, chief guest is told to address the audience. यानी chief guest को बोला जा रहा है कि audience के लिए आप एक speech दो. Thank you, sir. Now speech is over. Okay. Your speech has given us the wonderful insights and various aspects of art and culture. मतलब आपकी भाषण से हमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स आर्ट्स के पता चले, तरह तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं, आर्ट्स होते हैं, हमें पता चला, और कल्चर होता है. वी आर इमेंसली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर इनवैल्यूएबल वर्ड्स ऑफ एनलाइटमेंट. आपके जो शब्द है वो हमको काफ़ी प्रभावित किए और काफ़ी सारी जानकारी हमें आपकी भाषणों द्वारा पता चला आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड. ना आफ्टर एवरीथिंग इज़ फिनिश, सब प्रोग्राम फंक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो आफ्टर दैट वी सेड वोट ऑफ थैंक्स. मतलब सबको हम लोग थैंक यू कहते हैं, इवन द ऑडियंस, द चीफ गेस्ट, द अदर डिग्निटरीज, प्रिंसिपल एंड लास्ट में एक वोट ऑफ थैंक्स होता है. दैट इज सेड, यानी सबको थैंक्स कहते हैं, शुक्रिया कहते हैं, क्योंकि वो अपने वैल्यूएबल वक्त निकाल के इस फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे शामिल हुए हैं. तो ओके, दैट इज वोट ऑफ थैंक्स. Before we draw the curtain, I take the opportunity to thank all of those who have lent a helping hand to make this art festival meaningful. And for the formal vote of thanks, I invite convener of this program, our art teacher, Miss Shilpa Sangania. Okay, यानी सब लोगों को थैंक्स कहा जा रहा है जिन्होंने इन प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में अपना हाथ बटाया है. द स्टूडेंट्स, द टीचर्स, एवरीथिंग, उनको सबको थैंक्स कहा जा रहा है उनकी इसके लिए, मदद के लिए. ओके, एंड द हार्ट टीचर इज इनवाइटेड मिस शिल्पा संगानिया, वो इज़ द कन्वीनर. मतलब जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाली जो मेन लेडी थी मिस शिल्पा, उनको बुलाया जा रहा है. वो और वो थैंक्स, उनको भी थैंक्स कहते हुए इस प्रोग्राम का ख़त्म करते हुए, अंत करते हुए, दे हैड फिनिश दिस लेसन. ओके, दिस इज़ हाउ इट इज़ ऑर्गेनाइज. आप लोगों को अच्छी तरह से पता है प्रोग्राम को किस तरह स्टार्ट किया जाता है एंड किस तरह एंड किया जाता है. इन दिस सी सम ऑफ द प्रोग्राम्स वेयर देयर इन द आर्ट फेस्टिवल: कोली डांस, लाइटिंग द लैम्प, चीफ गेस्ट स्पीच, अप्रेसियल ऑफ द आर्ट फेस्टिवल, डिग्नेटरी सेरेमनी. ये सब चीज़ें प्रोग्राम सब एक फंक्शन में होता है. स्कूल फंक्शन जो होता है, एनुअल फंक्शन, इसमें सब होता है. एवरीथिंग इज़ डन, यू माइट नो दैट. हमारे स्कूल में भी स्कूल फंक्शंस हुए हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि क्या क्या होते हैं उस फंक्शन में. तो वी विल फिनिश दिस लेसन. थैंक यू.